Hello everyone and welcome back to our English learning session here on Sudhar Education. I hope you all are doing well and today we are revising tenses. Now before we begin, I want to let you know that today's session is going to be the revision of all the tenses we have covered so far. I encourage you to stay engaged and follow along as we recap all the key concepts that we have studied so far. We'll start by reviewing the basics of tenses and then move on to each tense category: present, past, and future. I'll provide you some examples and explanations to refresh your memory and to solidify your understanding. Also guys, feel free to pause the video at any time to take notes or review any concepts you find challenging. Remember, this is your opportunity to reinforce what you have learned and build confidence in using English tenses effectively. As we go through the revision, I want you to actively participate by answering questions and practicing forming sentences on your own. Don't worry if you make mistakes, that's all part of the learning process. Also guys, my goal is for you to feel more confident and comfortable using English tenses in your everyday conversations and writing. So without further ado, let's start our class. So guys, as you can see here, I have provided you a chart with examples. So we are going to revise one by one. First is simple present tense, in which I told you that the rule is we use first form of the verb. Here you can see the example, I eat food. So eat is our verb here. Second is present continuous, in which I told you that the rule is we use is, am, are, first form of the verb, and ing. For example, I am eating food. Third we have is present perfect, where we use has or have and third form of the verb. Example, I have eaten food. Fourth we have present perfect continuous tense, where we use has or have been, first form of the verb, and ing. Example is, I have been eating food. So these are the four forms of present tense. Now we are going to revise four forms of past tense. So first one is simple past, in which second form of the verb is used. For example, I ate food yesterday. Second is past continuous, in which was or were, first form of the verb, and ing is used. Example, I was eating food. Third we have is past perfect, in which we use had and third form of the verb. For example, I had eaten food before you arrived. Fourth we have past perfect continuous, in which we use had been, first form of the verb, and ing. I had been eating food when you arrived. Now moving on to the future tense.
As I already told you in yesterday's lecture that according to modern English, future tense does not exist. But guys, अभी हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, so we have to focus on this also and we have to know कि future tense में क्या यूज़ होता है. First we have is simple future, where we use will or shall and first form of the verb. For example, I will eat food. Second, future continuous, will, shall be plus first form of the verb plus ing. I will be eating food when you arrive. Third, we have future perfect, where we use will or shall have, third form of the verb. I will have eaten food by lunchtime. Then last we have future perfect continuous, where we use will or shall have been, first form of the verb and ing. I will have been eating food until you arrive. Also guys, as I told you in the last lecture कि will का यूसेज हम करते हैं किसी भी चीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए, एंड शेल हम नॉर्मल किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं नॉर्मल कुछ बोलने के लिए, वी यूज़ शेल. अब गाइज अगर मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की बात करूँ, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट क्वेश्चंस. So I was telling you that we are not going to get questions in such form जो मैंने अभी आपको बताया. ये मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था. हमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी हेल्प करेंगे अगर हमें टेंसेस का पता हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं. सेकंड, हमारे टेंसेस ग्रामर एंड वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारी. थर्ड, जो हमारे एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको करेक्ट करना होता है और हमें बताना होता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, वहाँ पे हमारी ये नॉलेज चेक हो सकती है. अगर हमारे टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स सही होंगे, हमें पता होगा कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो हम इजीली क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी, तो आई होप उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टेंसेस को लेके. गाइस, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है. द स्टूडेंट्स हैज़ बीन वेटिंग फॉर द टीचर सिंस मॉर्निंग. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि फाइंड द एरर है, तो आई होप कि आप पॉज करके या इवन विदाउट पॉज भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे होंगे. तो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पे जो हैज़ का यूज़ किया गया है वो गलत है. यहाँ हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हैव को यूज़ करते हैं. तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द टीचर सिंस मॉर्निंग. अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ, तो गाइस जैसे ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि इसमें एरर डिटेक्ट करके बताओ कि इसमें क्या एरर है. एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे, बट फिर भी मैं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ आया है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई विल मीट यू एट द कैफ़े येस्टरडे. इसमें हमारा जो एरर है वो येस्टरडे है, बिकॉज येस्टरडे इज़ नॉट compatible with
फ्यूचर टेंस। ओके, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आई मेट यू एट द कैफ़े येस्टरडे। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे फ्यूचर को यूज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एरर डिटेक्शन के जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 8 क्वेश्चंस हैं ये, तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे हमें डायरेक्शंस दी गई हैं दैट इन दीज क्वेश्चंस रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। तो यहाँ पे जो विल का यूज़ किया गया है वो गलत है, क्योंकि टाइम क्लॉज के बाद विल यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में था, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन, माय फादर हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो एक्टिविटी है वो लास्ट सैटरडे की है, तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा माय फादर लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर बी होगा, क्योंकि बी पार्ट में हमारे एरर था। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा क्वेश्चन है, आई यूज़ टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। यहाँ पे जो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो ये गो दिया है, दिस विल बी चेंज टू वेंट, क्योंकि यहाँ हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, वो भी पास्ट को लेके। तो हमारा यहाँ जो एरर है वो सी में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. तो यहाँ पे जो हैज़ हमारा दिया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो प्लूरल है, एंड प्लूरल के साथ हैज़ कभी नहीं आता, प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज आस्क्ड द मैन इफ़ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है, उसने पूछा था, इसीलिए ये कंटेन भी पास्ट में आएगा, दिस विल गेट चेंज टू कंटेन्ड। इसे जो हमारा एरर है वो सी पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी बाय माई विजिटिंग कार्ड दैट नाउ आई एम इन मुंबई।
तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री वॉज कंसीडर्ड several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा, जिस वजह से हमारा वॉज यहाँ पे गलत है और एरर हमारे ए पार्ट में है, इसलिए ए हमारा आंसर है। ये करेक्ट होके बनेगा, द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. Now the last questions. Having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman. तो स्टूडेंट यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वर्क विल गेट रिप्लेस्ड बाय वर्कड, और एरर हमारे ए में था, इसलिए ए पार्ट हमारा आंसर होगा। और हमारा अरेंज करके जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, शी इज़ द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। And there you have it, a quick recap of all the tenses we have covered so far. I hope this revision session has been helpful in reinforcing your understanding of English grammar. Remember, mastering tenses takes practice, so keep practicing and don't be afraid to make mistakes. That's how we learn and improve. ऑल्सो आज मैंने आपको एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वैसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस कल आपको किसी और टॉपिक के कराऊंगी जहाँ पे टेंसेस का यूज़ होता है और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं और जिसकी प्रैक्टिस करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल स्टूडेंट्स. Thank you for joining me today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more English learning content. Until next time, happy studying.